for each of my questions, I need volunteers. I need I request you all to be participative, to share your experience so that we can actually learn from each other and make best use of this interaction. Make best use. So before moving further, I have with me some PPT for you. Let me share with you all. And please do confirm me whether you are able to see this or not. Are you able to see the PPT? Everyone? No, sir. No, Not sir. yet, No, sir. sir. No? Okay. Yes. That's Yes, great. now Now it we is can. visible, sir. Now it's visible. Means there is a lag of 3 seconds, at least 3 seconds from my side or from your side, whatever it is case. So आप ये मान के चलो अच्छा we can be bilingual or preferred English language. Please do tell me. Sir, preferably English and Hindi, हाँ because majority preferably of them are, okay. yeah, understand Hindi and English. Okay, okay. So I try to be. I'm also comfortable with Hindi and English both. So we will do that. आप में से जब भी किसी को कुछ भी बोलना हो या कोई भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करना हो, you please unmute yourself and share your thoughts. Because from my side, there is a some limitation with the Google Meet that I cannot saw your messages simultaneously when I am sharing my PPT. Okay, so that's why I prefer that you please unmute yourself and share if you have any suggestion, any queries, questions, or you want to share something from your side. Okay, now uh, we are discussing we are tend to discuss the student diversity and inclusive education in this session. And before moving further to the topic, I want you to please let me know what's your understanding about student diversity and inclusion. Are both are the same thing or different thing? Please tell me. Student diversity and inclusion, are the same thing or different thing? What's your understanding? जी बताइए. Sir, हाँ. in my understanding, what I get out of this is like students come from various diverse fields, Okay. and getting them inclusive in the current education scenario, as in getting them aware about the various aspects, is हम्म. what is inclusion is all about. ओके. ठीक है, और कोई? और कोई प्लीज. थैंक यू सरिता मैम. और कोई प्लीज बताना चाहेगा डाइवर्सिटी से आप क्या समझते हैं और इंक्लूजन से आप क्या समझते हैं? हमारे range एजुकेशन of सिस्टम में इसकी जरूरत है क्या? range of differences among student in educational getting. रेंज ऑफ डिफरेंसेस मीन सर कैसे डिफरेंसेस? They belong to different religion अनिल सर religions. मतलब हाँ कैसे डिफरेंसेस? आप ठीक बता रहे हैं. आप Sir, मैं I think he's saying that they come from diverse economic background, then ओके. no understanding of educational background, something like that. ओके. तो क्या ये डाइवर्सिटी जरूरी है? क्या हम एक तरह के बच्चों को पढ़ा के नहीं अचीव कर सकते हैं गोल को? नहीं, मुझे लगता है नहीं. डाइवर्सिटी बहुत जरूरी है, तो क्योंकि अगर हम ऐसे ही डाइवर्सिटी चूज करते हमारा रहेंगे तो मुश्किल है. ओके. Diversity is natural. It is not essential that everyone are of the same category or of the same range. It is not essential. Their culture. भावेश सर आपने दो बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बातें बोली हैं. एक ये नेचुरल है और ये दूसरा कि सेम हो ये एसेंशियल नहीं है. ये दोनों अलग अलग बातें हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है. ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं. चलिए हाँ अनिल सर आप कुछ कह रहे थे. We can say that
cultural background, life experience, and learning needs. Okay, learning ability, cultural Yes. background, life experiences, economical Yes. background, ये Yes. सब डाइवर्सिटी के बेसिस हो सकते हैं, This राइट? is. Mm. कास्ट को भी बेसिस ले सकते हैं क्या सर? कास्ट को, जेंडर को बेसिस Yes, है sir. क्या? ओके, और कुछ बेसिस सर? Geographic diversity, हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, राइट? social economic diversity, ठीक है, एनीवन एल्स? religious diversity, हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल सही है। अनिल सर, gender सरिता मैम, diversity. भावेश सर, थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेटिंग। हम I request if any other participant would like to add something, what they understand about diversity and how they feel inclusion is important in this context. Anyone else, please. देखिए, रोज रोज हम लोगों को मौका मिलता नहीं कि हम लोग एक दूसरे की बात सुन पाए, कह पाए अपनी बात। क्या हमारी लर्निंग एक्सपीरियंसेस है? एंड वी ऑल आर द सेम, वी ऑल आर द टीचर्स, वी ऑल आर इन द सेम प्रोफेशन, एंड मोर और लेस वी ऑल आर इनकाउंटर विद द सेम सिनेरियो, मोर और लेस। कभी ना कभी, कहीं ना कहीं हम लोगों को ये फील करना पड़ता है। मैं अपनी भी अंडरस्टैंडिंग आपके साथ शेयर करूंगा, बट मैं पहले जानना चाहता हूँ कि अगर कोई और कुछ कहना चाहे, प्लीज। Yes, sir. I would like to add something. This is Reenu Mehta from BBA department. I just wish to say that including the various kind of students is important, as and everyone should get equal chance. वेरियस काइंड ऑफ स्टूडेंट्स में मतलब मैम कैसे कैसे? Diversity in having that, जैसे इन्होंने कहा कि इकोनॉमिक बैकग्राउंड्स अलग होते हैं. In case of gender, in case of age, there can be any kind of diversity in them. So including all kind of students is a way to give everyone an equal chance बिल्कुल to ठीक get कह रहे हैं मैम आप, education. और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। बट हमें अलग अलग तरह के बच्चे चाहिए क्यों? मेरा सवाल ये है, डाइवर्सिटी, व्हाई वी नीड एक्चुअली डाइवर्सिटी? भावेश सर ने बोला कि ये नेचुरल है, आई अंडरस्टैंड, आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड दिस पॉइंट कि इट्स नेचुरल, बट व्हाई वी आर सो पर्टिकुलर दैट वी नीड डाइवर्सिटी इन आवर क्लास? व्हाई? Sir, mentally challenged and subconscious abilities. सम Mentally challenged or subconscious नहीं abilities. नहीं, मेरा सवाल फिर से ये है सर, Hmm. मैं ये पूछ रहा हूँ अनिल सर कि Hmm. हम सब जानते हैं कि डाइवर्सिटी क्लास में होना इम्पोर्टेंट है, ठीक है, वी ऑल आर एग्री इन दिस सेम थिंग। भावेश सर ने पॉइंट आउट किया कि ये नेचुरल भी है, एग्रीड। डाइवर्सिटी के कुछ टॉपिक्स हम लोगों ने डिस्कस भी किए कि ये डाइवर्सिटी के टाइप्स होते हैं। आपने जेंडर, कास्ट, रिलीजन, इकोनॉमिक बैकग्राउंड, कल्चर, लर्निंग एक्सपीरियंस, ये आपने बताए। मेरा सवाल ये है, व्हाई वी आर सो पर्टिकुलर, why it is important to have a group of diverse students in the class? Is it something related with the all or learning of the student? Sir, I just want to say that because in the real world they will come across different kinds of people. So I think to make them ready for the real world experience, to get them aware of other cultural aspects, I think diversity in students is necessary. बिल्कुल ठीक बात है मैम, और शायद कहीं ना कहीं डाइवर्सिटी हमारी क्रिएटिविटी को बढ़ाती भी है। और उन्हें जब वो स्कूल से बाहर जाएंगे, कॉलेज से बाहर जाएंगे, तब उन्हें भी अलग अलग तरह के लोग मिलेंगे, तो दे मस्ट बी एबल टू डील विथ ऑल काइंड्स ऑफ पीपल. That's why I think diversity is important. Now that's my point. यही बात है कि डाइवर्सिटी क्रिएटिविटी को बढ़ाती है, और डाइवर्सिटी उनको और अलग अलग तरह के लोगों के साथ मिलकर काम करने में मदद करेगी, विच इज अ रियल लाइफ सिनेरियो। हम जब वर्क प्लेस पे जाएंगे तो हमें एक जैसे लोग नहीं मिल सकते, बिल्कुल ठीक बात है। आइए अब अपना सेशन You स्टार्ट want करते to हैं। say that they should be in coexistence with each other. That's why diversity is very important. You can say that. हाँ जी मैम, सॉरी सर, Coexistence is the word. Coexistence. कोएग्जिस्टेंस, बिल्कुल है ना? ठीक, बिल्कुल बिल्कुल, एग्रीड। आइए थोड़ा सा हम लोग अपना सेशन देखते हैं, टॉपिक देखते हैं, और फिर हम लोग डिस्कशन करते रहेंगे। मेरा पूरा प्रयास रहेगा to make it more interactive, learning from your experiences and sharing my experiences in this entire process. Well, to see my PPT. So for next 3 hours, I'm all yours.
and I try to make best use of my learning with you all. Whatever we are intended to do in this session, in today's session, we will try to recognize and understand what is the student diversity. Means we will try to identify the entire spectrum of student diversity in higher education especially. Okay, and we will also try to understand how its impact on teaching and learning process. First point. Second, we will also try to explore the implement how we can implement the inclusive pedagogy, how we can actually move ahead from as a learner centric approach from teacher centric approach. ठीक है, ट्रेडिशनल मेथड से हम मॉडर्न मेथड में कैसे शिफ्ट कर सकते हैं, we will try to focus on that. Then we will also try to explore how we can develop the support system for our students. The mentor mentee concept जो होता है ना, हम लोग उसको कैसे डेवलप कर सकते हैं, and how we can actually minimize the gap from the learning perspective of the students. ठीक है, what are the strategies to reduce the disparity in student performance. ठीक है, हम लोग PPAC वगैरह की भी थोड़ी सी बात करेंगे. तो that is what we are intended to make this session. ग्राउंड रूल्स क्लियर होने चाहिए, हमें मालूम होना चाहिए कि हम पढ़ने क्या वाले हैं और हम लोग क्या डिस्कस करेंगे. मैं यहाँ पे NEP 2020 को कोट करूंगा बिकॉज ये इतना इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको डेडिकेटेड थीम डाला गया है डाइवर्सिटी और इंक्लूजन को. इसको मैं आपको कोट करना चाहूंगा. आई जस्ट वांट टू मेक यू अवेयर दैट इंक्लूसिव एजुकेशन इज नॉट अबाउट देम, इट्स नॉट अबाउट स्टूडेंट, इट इज अबाउट ऑल ऑफ अस. ये हम सबके बारे में है. द गोल इज नॉट टू लीव एनीवन बिहाइंड, dismiss differences or homogenize education, but to embrace diversity and maximize the potential of each student. चलिए पहले हम लोग थोड़ा डाइवर्सिटी और इंक्लूजन के बारे में बात करते हैं. और इस सेशन के दौरान ये जो हमारा फर्स्ट हाफ होगा, इसमें हम लोग डाइवर्सिटी को समझेंगे, लर्नर सेंट्रिक मेथड्स को समझेंगे और नॉलेज कंस्ट्रक्शन क्या होता है इसको समझेंगे. मैं आपके साथ कुछ ब्रीफ डिस्कस करता हूं. एक बिग पिक्चर इंडिया हायर एजुकेशन की अभी है क्या. टुडे वी हैव अराउंड, और यू कैन से मोर देन 1200 यूनिवर्सिटीज इन इंडिया, more than 45,000 colleges in India and 12,000 stand-alone institution. और जो भी मैं बात बता रहा हूँ that is based on government records 2021-22 को मैं आपको रेफर कर रहा हूँ. यहाँ पे एपार को रेफर कर रहा हूँ. 43.3 million students enroll in higher education, and that is 26% increase from 14 to 15. 14-15 से 26% इंक्रीज है लास्ट 10 ईयर से. अगर हम GER के बात करें, ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो की बात करें, तो जो हमारा पोस्ट इंडिपेंडेंस 0.4% था वो अब 28.4% है. और आज की डेट में अगर हम बात करें, we have around 500 public state universities which are serving 3.25 crore students, 81% of total enrollment. And अगर हम global level पे बात करें तो we have 318% increase in India's representation in global ranking, highest among G20 nations. These are some facts and figures which I think I should share with you. ये थोड़ा पॉजिटिव चीजें हैं, हम अपनी पीठ थपा सकते हैं, फील गुड फैक्टर वाला मामला है. नाउ NEP की अगर हम बात करें, जहां अभी हमारा GER 28.4% है एज पर 2021-22, it aims to make the GER 50% by 2035, focusing on strengthening education infrastructure, faculty and research. And maybe that is the reason why we are actually need this diversity. Now, आप सब बहुत पार्टिसिपेटिव हो और आप लोगों ने सबसे पहले ही साबित कर दिया कि यू आर रियली एक्टिव. अब मैं आपको एक डाइवर्स सिचुएशन देता हूँ आपके क्लासरूम की. आई डोंट नो एक्चुअली कि आप लोग क्या सब्जेक्ट पढ़ाते हो. इट मे बी कॉमर्स, इट मे बी आर्ट, साइंस और मैनेजमेंट, व्हाटएवर इट इज. आप
प्लीज एक बार सपोज करिए कि आपकी एक क्लास है जिसमें 4 अलग अलग तरीके के लड़के हैं या बच्चे हैं, 4 स्टूडेंट्स हैं, मे बी इट्स ए इलेक्टिव क्लास. इमेजिन ए क्लास वेयर देयर आर 4 स्टूडेंट्स. A, K, F, R means Arjun. A for Arjun, K for Kavya, F for Fatima, and R for Ravi. ठीक है, 4 बच्चे हैं. Now I'm making a diverse group. Means Arjun is from tribal area of Jharkhand. Kavya is from South Delhi. Fatima joined virtually from Kashmir. Jammu and Kashmir में आपने देखा है बाढ़ आ गई है. And Ravi is connected from small town of Tamil Nadu. Now, अगर आप इसका बैकग्राउंड देखिए जो मैंने खास तौर पे आप लोगों के लिए लिखा है, तो their background is quite diverse, and so their language, culture, learning style and experience, जो भी आप लोग बात कह रहे थे, मैं आपको थोड़ा इनके बारे में डिटेल देता हूँ. अर्जुन, he is the first in his village to attend the university. ये एक ऐसा बच्चा है जो अपने घर परिवार में पहला बच्चा है जो यूनिवर्सिटी जा रहा है. पहला बच्चा है. लर्न इंग्लिश, जिसने इंग्लिश केवल हाई स्कूल में पढ़ी है. काव्या की अगर हम बात करें तो वो साउथ दिल्ली से बिलोंग करती है, अर्बन बैकग्राउंड से बिलोंग करती है, इंटरनेशनल डीपीएस में पढ़ी है, इंटरनेशनल स्कूलिंग हुई है, मल्टीलैंग्वेज है, उसको इंडियन लैंग्वेज फॉरेन के अलावा जापानीज और फ्रेंच भी आती है और टेक से भी है. फातिमा की अगर हम बात करें, शी इज नेविगेटिंग कनेक्टिविटी चैलेंज, क्योंकि वो जम्मू कश्मीर के साइड में है. अभी आपने देखा वहाँ फ्लड सिचुएशन आ गई है, थोड़ी बाढ़ वाली सिचुएशन है, तो नेटवर्क का थोड़ा इशू रहता है. एंड डिस्पाइट ऑल द रीजनल बैरियर्स, शी इज एक्चुअली ट्राइंग टू बी अ पार्ट ऑफ द क्लास. एंड रवि फर्स्ट जनरेशन लर्नर है जो पार्ट टाइम भी काम कर रहा है और वो इंग्लिश में पढ़ाई करता है, ऑल्दो उसकी मदर टंग तमिल है. अगर मैं ये कहूँ कि ये आज के इंडियन हायर एजुकेशन की रियलिटी है तो ये गलत नहीं होगा, बट मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपको ऐसी क्लास में जहाँ आपके मोर और लेस 4 मेजर ग्रुप्स हैं स्टूडेंट्स के, या 4 स्टूडेंट्स हैं जो 4 अलग अलग बैकग्राउंड्स के हैं, इनमें आप क्या अपॉर्चुनिटी और क्या चैलेंज देखते हैं? अगर आप अपनी क्लास ऐसी इमेजिन करें तो आप कैसे बताएंगे कि कैसे आपके टीचिंग पैटर्न को एज ए टीचर आप अपने टीचिंग पेडागोगी को कैसे चेंज करेंगे, कैसे स्टूडेंट्स को ज़्यादा स्टूडेंट्स के लिए अपीलिंग बनाएंगे? आपके लिए क्या चैलेंजेस आप देख रहे हैं या क्या अपॉर्चुनिटी आप देख रहे हैं? प्लीज़ मुझे बताइए. एज ए टीचर, अगर आपकी क्लास में ऐसे 4 स्टूडेंट्स हों, अर्जुन, काव्या, फातिमा, ऐसे बच्चे हों आपकी क्लास में, रवि, तो आप अपनी क्लास को कैसे हैंडल करेंगे? आप अपनी क्लास के लिए क्या करेंगे? कैसे आप अपने टीचिंग पेडागोगी को चेंज करेंगे? क्या चेंज करने की ज़रूरत है ऐसे डाइवर्स क्लास के लिए? यस सर. जी बताइए मैम. सॉरी, लाइक आपका स्क्रीन जो है ना सर, वो प्रेजेंटेशन मोड में बहुत इधर उधर हो रहा है, तो मैम जस्ट अ मिनट. हाँ यस. अब मैंने गूगल मीट को मिनिमाइज कर दिया है. मेरी स्क्रीन अब आपको दिख रही होगी. मैंने जो इम्पोर्टेंट पार्ट थी इसको पहले हाईलाइट कर दिया है. आई होप यू आर एबल टू क्लियरली सी द स्क्रीन. नाउ आई कैन सी इट. नाउ we have 4, I again repeat, we have 4 students in your class. You have 4 students in your class. One is Arjun. I'm just again highlighting it. One is Arjun. Okay. Another is Kavya. Another is Fatima. Another is Ravi. These 4 students, all 4 are from different background. और उनका बैकग्राउंड में क्या चेंज है वो मैं आपको दिखा देता हूँ. Yes. Arjun is from tribal area of Jharkhand. Kavya is from South Delhi, Fatima is virtually joined from Kashmir, and Ravi is a small town boy from Tamil Nadu. और ये चारों भी इंग्लिश में पढ़ाई कर रहे हैं आपकी क्लास में. प्रॉब्लम इंग्लिश नहीं है.
they might have a different regional preferences, regional language preferences, but they are commonly studying in English. तो आप इंग्लिश में पढ़ा रहे हो, वो प्रॉब्लम नहीं है. यहाँ पे उनका पॉइंट ये है कि चूंकि ये चारों बच्चे अलग अलग कल्चर से आते हैं, अलग अलग लर्निंग स्टाइल इनकी हो सकती है, अलग अलग एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं, तो क्या आप जैसे आप नॉर्मली क्लास डील करते हो, क्या आप वैसे ही पढ़ाओगे? क्या इनका बैकग्राउंड अफेक्ट करेगा आपके टीचिंग को? और अगर हाँ, तो कैसे आप अपने कंटेंट को या टीचिंग मेथड को और इंगेजिंग बनाओगे ऐसे डाइवर्स क्लास के लिए? दैट इज माय क्वेश्चन. Yes, I understood completely. But see, when if you are giving up an example of only 4 students, then it is feasible that we can identify the loopholes into their background pattern and everything. But when it comes down to a classroom of 120 students, first as a teacher, whatever subject that I'm teaching, I'll go as in the normal way of teaching only. For example, then we have got a screening test that we always conduct. So the screening test will identify the kind of student that you talk, Okay. isn't it? On the basis of that, then we would put them into category. Then, for example, if it's a slow learner only, doesn't mean that the girl who is joining from Kashmir is a slow learner because she's joining virtually, or Tamil Nadu ka small town boy doesn't. I mean, put them into that basket only. You can say a girl from South Delhi can be a slow learner. सर So, एक मिनट, जस्ट अ मिनट. मैं आपको एक बात कह रहा हूँ, मेरी बात सुनिए. हाँ. आप क्या हाँ. पढ़ाते हो? आप क्या पढ़ाते हैं? सर मैं कॉमर्स में हूँ. कॉमर्स बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है. मैम मान लो कॉमर्स में आप मैनेजमेंट, मान लो आप मैनेजमेंट फैकल्टी हो, करेक्ट. ठीक है? हाँ. आप आई में मान लो मैनेजमेंट फैकल्टी हो, हाँ. और ये चारों बच्चे कैट एग्जाम क्लियर हाँ. करके आए हैं आपके पास. आपका स्क्रीनिंग टेस्ट वाला क्वालिफाई कर Correct, दिया है हाँ. इन्होंने क्राइटेरिया, ठीक है? स्क्रीनिंग टेस्ट हो गया, ये आपकी क्लास में है, तो डेफिनेटली एक फिल्टर प्रोसेस से आए हैं. करेक्ट. माय पॉइंट इज, जो हम लोग अभी डाइवर्सिटी की बात शुरू किए थे, कि जो इनका मैंने आपको कल्चरल डिफरेंस दिया, आपने हाँ. देखा मैंने कल्चरल इनका हाँ. डिफरेंस दिया, करेक्ट. हाँ. इनका लर्निंग स्टाइल डिफरेंस हो सकता है. हाँ. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दे आर स्लो लर्नर और फास्ट लर्नर. आई एम हाँ. टॉकिंग अबाउट बेस्ड ऑन देयर लैंग्वेज भी मैंने कर दिया क्योंकि आप इंग्लिश में ही पढ़ा रहे हो, ठीक है? हाँ. कल्चर, लर्निंग स्टाइल और एक्सपीरियंस. जो हाँ. बच्चा दिल्ली में रह रहा है, काव्या, जो हाँ. बच्चा झारखंड से आया है, और जो बच्चा तमिलनाडु के गांव से आया है, उनके एक्सपीरियंसेस पुराने अलग अलग हो सकते हैं मैम. करेक्ट. हो सकते, बिल्कुल हो सकते. मैं ये कह रहा हूँ कि इनका ये जो, अगर आप 3 फैक्टर पकड़ो, कल्चर, लर्निंग स्टाइल और एक्सपीरियंस, अगर आप सिर्फ ये 3 पकड़ो, हाँ. तो अगर आपकी डाइवर्स क्लास है जहाँ पे आपको मालूम है, ये मैंने एग्जांपल के लिए 4 रखे, आप 40 रख लो. करेक्ट. आपको मालूम है कि आपके यहाँ हर बच्चा हाँ. किस, आपने डेलिबरेटली उसको एक अलग बैकग्राउंड से चूज किया है. हाँ. उसका लर्निंग स्टाइल अलग हो सकता है, उसके एक्सपीरियंस अलग हो सकते हैं. Then how you can make sure that at the same time all are engaged in your class? That is my question. Oh, that would be so difficult to kind of. Difficult है but impossible नहीं है. हाँ, difficult है, impossible बिल्कुल हाँ, नहीं. अब difficult को आप क्या, difficult होगा definitely. When we हाँ. have a diverse class, it will be difficult. But हाँ. वो difficult को हम कैसे entertaining बनाएंगे, कैसे उसको opportunity, वो challenge है. करेक्ट. No doubt. चैलेंज को अपॉर्चुनिटी में कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं? आई एम आस्किंग दिस टू यू. अगर आपको ऐसी क्लास मिलती है मैम, हाँ. एमबीए अगर आप पढ़ाओगे तो आपको ऐसी क्लास मिलेगी जहाँ पे साइंस साइड का भी बच्चा होगा, बीटेक वाला भी बच्चा होगा, कॉमर्स वाला भी बच्चा होगा, आर्ट्स वाला भी बच्चा होगा. Yes. ठीक है? That I have done, but then in those days, what we used to do when I was teaching MBA, what we used to do, a science student, because that time I was a finance faculty. Right. I specialized in finance only. So ma'am, what we are in the same boat. We are in the same boat. Yeah, same pinch, sir. Then, Okay. So then in those days and during those times, what we do is like we used to club them up into a group wherein a science background student would join a commerce background one, and then given an activity together, ठीक है. kind would make them go for it instead of getting them isolated or what. And then more
emphasize and more what you can say in method, then we used to go for the subject. ग्रुप That is एक्टिविटी आपने एक एग्जांपल correct. दिया, वेरी हाँ. वेल, वेरी वेल डन, बिल्कुल सही है. एनीवन एल्स प्लीज, एनीवन एल्स? यहाँ पे जितने 40 प्लस लोग हैं, मैं आप सब लोगों के साथ मुखातिब हूँ. प्लीज प्लीज शेयर योर व्यूज. I hope we have 50 now. Please. Education for all, Hmm. togetherness, equality, participations, or group activities, so that they can mature one another. Collective action. अनिल सर, मैं आपकी बात ठीक से सुन नहीं पा रहा हूँ. आपका माइक एक बार कनेक्ट करिएगा ठीक से. मैम ने ग्रुप एक्टिविटी की बात बोली हाँ, कि हम group ग्रुप फॉर्म activity. करेंगे हाँ. और ग्रुप के थ्रू अलग अलग एक्सपर्टाइज एरिया या अलग अलग बैकग्राउंड के बच्चों को एक साथ में बैठा के टास्क देंगे, प्रोजेक्ट वर्क जैसे बोलते हैं हम लोग, है ना, टीम वर्क. ठीक है, वो करेंगे. वो पॉइंट वेल टेकन है. और क्या अप्रोचेस हो सकती हैं सर, मैं ये पूछ रहा था. They are participating and achieving and support with each other. कैसे सर, कैसे? कुछ एग्जांपल दीजिए ना, जैसे आपने किया हो कभी, प्लीज बताइए ना. So we can also go for audio visual aids, because students from any cultural background, they can better understand if taught from audio visual method. Then that is also done with the English language. लैंग्वेज वाला प्रॉब्लम तो नहीं मैं कह रहा हूँ. ऑडियो विजुअल मीन्स to make it more interesting. Are you mean? To make it more understandable, sir. They can understand the concepts when they can see them. There are certain things which could be better understood if been seen. Okay. Observation. Observation is different thing, and what I am understanding from Meenal ma'am, that is different thing. मीनल मैम, जो आप बात कह रही हैं उसको हम लोग एक एग्जांपल से समझें. सर, कुछ चीज ऐसी होती कि कोई भी कल्चरल बैकग्राउंड का हो, अगर हम फॉर एग्जांपल इफ आई एम टीचिंग एंटरप्रेन्योरशिप थ्योरी एंड प्रैक्टिसेस एंड लाइक मुझे उनको बताना है कि लेटेस्ट इनोवेशंस क्या हुए. Students that come to our college are from economically backward class. They do not understand certain concepts like 3D printing अभी नया आया है. So if I can explain the thing from audio visual aid, they would be in a position to understand it in a better way. That's wonderful. Be it from any cultural background. That's wonderful. मैम, आप किस बैकग्राउंड से हैं? आप भी कॉमर्स से हैं या साइंस से मैम? Commerce. मैं एक मिनट का एक वीडियो प्ले करता हूँ. आपने जो बात कही उसके साथ में हम लोगों ने साइंस में पीरियोडिक टेबल पढ़ी थी. Correct. आप लोगों को याद होगा, हम सब ने पढ़ी है. आप वीडियो देख पा रहे हैं मेरी स्क्रीन पे? Yes, sir. जी, ये वही जो पीरियोडिक टेबल है ना, ये उसमें कॉपर को हम लोग CU बोलते हैं. और मैंने यहाँ पे AI के यूज से आपको दिखाने की कोशिश की है, जो आप बात बोल रही थी ऑडियो विजुअल वाली. एक बार देखिएगा हाउ AI कुड बी हेल्पफुल टू मेक, जो आप इमर्सन वाली बात कह रही है ना, कि जब वो देखेंगे तो समझ पाएंगे ज्यादा बेहतर. Very nice. मैम, कुछ ऐसी बात कह रही थी आप कि देख करके ज्यादा फील आएगा और ज्यादा अच्छे से याद रह पाएगा.
यस सर। मीनल मैम? यस, मैं मीनल मैम को थोड़ा सपोर्ट में यही कहूंगी कि लाइक नो, I, I think you are from a management background, faculty and all. The participants that we have all over here are from aided college, wherein the technological support which is being available to us in terms of teaching pedagogy in the classroom is quite restricted. So whenever we want Very, to kind of very true. whenever we were kind of, not that we also cannot do it, but then we need to take them to a audio visual room and things like, and then show us. So it becomes very difficult for people like us in a aided college wherein we are teaching only graduate students. So that becomes a task next level difficulty only. So we have to be more emphasized on our teaching skills and oratory skills only. So that becomes a problem. And what we are talking about, the college that we all come I from, agree with Sarita ma'am. we come from, the students come from a very poor background family. And like she said, I also teach now ED as a subject. So even if I ask them what who all are the entrepreneurs they know of, or can they search a lady entrepreneur who has make it big or something like that, so they would just stare at us and would not answer. Rather, a MBA student would come up with a nice presentation from where they have begin from a scratch and know how they have made it till date. That difference is there in the management faculty and the plain BCom MCom college that we all come from. ठीक है सरिता मैम, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अपनी जगह पे। देखिए Yes. इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेशंस जो हो सकती हैं या हैं आपके, आप जो बात बोल रहे हैं उसमें शायद हम लोग ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, बट जो एज ए टीचर हम कर सकते हैं हम उसको और बेहतर से कैसे कर पाएं, इसलिए हम लोग आज यहाँ जुड़े हैं, ठीक है ना। सेकंड, ये इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेशंस को भी हम कैसे मीट आउट कर सकते हैं, कैसे मिटिगेट कर सकते हैं, ये एक बोनस पॉइंट होगा अगर हम लोग इस पर कुछ कर पाएं। तो सेशन के लास्ट में मैं आपके साथ कुछ शेयर करता हूँ कि आपने जो इंफ्रास्ट्रक्चर वाली लिमिटेशन वाली बात कही है, इसके लिए हम क्या करें। We would be more than happy. ये लास्ट के लिए रखते हैं। लेकिन हाँ, जो एज ए टीचर हम कर सकते हैं, हाउ वी कैन एम्ब्रेस दिस डाइवर्सिटी, हाउ वी कैन मेक देम inclusive approach in our class, ठीक है, despite all the limitation whatever we have, means from the infrastructure point of view, वो हमें अभी आज के सेशन में देखना है। सेकंड, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि मेरा ये मानना है मैम, मैं भी एक रूरल बैकग्राउंड में इस वक्त हूँ, मैं कन्नौज में हूँ। इट्स नॉट अ tier 1 tier 2 सिटी, इट्स अ tier 3 सिटी। बियॉन्ड ऑल द प्रॉब्लम्स, इफ यू वांट टू फाइंड आउट अ वे, देयर इज अ वे। इसलिए कोट है ना, there is a will, there is a way. There is a very famous quote, if you want to find the solution, you have a way out, and if you don't want, you have an excuse. आपके पास सब होता है, मेरे पास भी होता है, सबके पास होता है। तो आज हम लोग नहीं, प्रैक्टिकल बात है मैम, ये बिल्कुल सही है। मैम अगर मान लीजिए मेरे एक पेपर पब्लिश होता है, मेरा मान लीजिए मैं पेपर लिखता हूँ, रिसर्च पेपर लिखता हूँ, मेरे रिसर्च पेपर पब्लिश होते हैं एबीडीसी, आप देखो स्कोपस क्यू1 जर्नल में पब्लिश होते हैं मेरे पेपर्स। अगर मुझसे कोई कहे कि नहीं बिना पैसा दिए पेपर पब्लिश नहीं होता है, ठीक है, तो वो भी बात सही है, बिकॉज ये भी एक फैक्ट है, और बिना पैसा दिए पेपर पब्लिश भी होता है, ये भी एक फैक्ट है। नाउ द पॉइंट इज, इफ यू कहना जिद्दी हैं आप कि नहीं आपको करना ही करना है, you will find out the ways कि कैसे कर सकते हैं। Assistance, you can find out the ways, in short. And if you don't want, you have an excuse, very good excuse. That is my learning. That is my learning. It's just simply as a teacher what I feel. तो ये एक फैक्ट है मैम। आइए थोड़ा सा और देखते हैं हम लोग, कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स की बात करते हैं। मैं अच्छा चलिए मैं आपको अपना एक एक्सपीरियंस बताता हूँ। मैं ये बात कह क्यों रहा हूँ
आप जैसे मैं भी अपनी क्लास जैसे हम सब लेते हैं, मैं भी क्लास लेता था, और मैं आपको आज से कुछ साल पहले का एग्जांपल दे रहा हूँ। ये कोविड के पहले की बात है, ठीक है। मैं इंजीनियरिंग कॉलेज है यहाँ, राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज कन्नौज, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज है, और यहाँ पे अब तो जेई मेंस, पहले यूपीटी के थ्रू एंट्रेंस एग्जामिनेशन होते थे, और उसमें रूरल बैकग्राउंड के ज़्यादातर बच्चे आते हैं। मेरे क्लास में एक बच्ची आई, और मान लीजिए उसका नाम ज्योति रख लेते हैं, ठीक है। वो बच्ची रूरल बैकग्राउंड से थी, पढ़ने में बहुत अच्छी थी, बट जैसे आप मैनेजमेंट फैकल्टी हो, मैं भी मैनेजमेंट फैकल्टी हूँ, और इंडस्ट्रियल फाइनेंस एक सब्जेक्ट था, मैं वो पढ़ा रहा था उसको, थोड़ा सा न्यूमेरिकल पार्ट था उसमें, तो वो फाइनेंशियल कैलकुलेशन में वो अच्छी थी, बट एट द सेम टाइम वो बच्ची बहुत शाई थी, बहुत ज़्यादा शाई थी। I was having this impression कि is there any problem or is there any way out जिससे मैं इस बच्ची की हेल्प कर सकूं, बिकॉज कहीं ना कहीं मुझे कुछ क्लिक कर रहा था कि शी कैन रियली डू बेटर इन द प्लेसमेंट, बट अगर ये इतना शाई करेगी तो इसका प्लेसमेंट नहीं हो पाएगा। एंड आई वाज द टीपीयू एट दैट टाइम, ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिसर। तो I asked, I am the faculty advisor also, I asked her कि क्या प्रॉब्लम क्या है, I just want to explore, I was just curious कि प्रॉब्लम क्या है, क्या कर सकते हैं। तो what I found out कि she said, जो हम लोगों ने भी शुरू में बात की कि रीजनल लैंग्वेज लिंग्विस्टिक बैरियर, वो कहती थी कि मेरे सर इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं है, that's why I am hesitate, एंड आई रियली फील कि आप जब क्लास में इंग्लिश में पढ़ाते हैं मुझे समझ में सब आता है, बट आई फील हेजिटेंट बिकॉज आई कैन नॉट स्पीक दैट मच फ्लुएंटली इन क्लास। ओके, आई गॉट द पॉइंट, एंड दैट्स व्हाई शी फील्स शाई एंड शी tend not to be very participative in the class. I take some steps, form some group activities like you all have done, teamwork, team activities, group activities, project presentation karaya, and sooner she has transformed, she has improved a lot, and by the end of the final semester she was actually representing the class in the tech fest business plan competition tha. She has represented the class, and the way she has presented the business plan, everyone in the entire class, they are clapping for her, they are actually clapping for her. And that day was really embracing for me as well, as a faculty advisor, as a teacher, because from a silent learner to a performer, a achiever, and later on she will be a student mentor. मतलब अपने जो जूनियर्स थे उनको वो पास आउट होने के बाद जब उसने जॉब ज्वाइन कर लिया तो वो आकर के उसने अपने एक्सपीरियंसेस भी शेयर किए। तो द ट्रांसफॉर्मेशन दैट वाज वेरी वेरी नियर टू माय हार्ट। So the point is, diversity जब हम लोग बात कर रहे हैं ना, it's not about कि क्लास में कौन बच्चा है, it's about किसको अपॉर्चुनिटी मिलती है अपनी बात कहने की और कैसे हम एज ए टीचर उसकी हेल्प कर सकते हैं। That is this session is all about. It's all about mentorship. It's all about learner centric approach through which as a teacher we can touch the life of our students. Right, कुछ हम लोग टॉपिक्स अपना डिस्कस कर लेते हैं फिर हम लोग आगे आते हैं। So we have some more stories like that, but more importantly I just want to share you some facts and figures which you might be interested that जब हम diversity statistics की बात करते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की रिपोर्ट है 2024 की कि approximately 57% of students in Indian higher education
came from socially and economically disadvantaged background. और जब वो ये कहते हैं, then I have looked for the enrollment background data and I found that SC enrollment there was a 76% jump in this period. ST enrollment 106% jump because previously it was from 11% to 21.60% jump, and gender parity index also 1.1 up from 0.87, which was in 11-12. So despite this impressive growth, what I actually want to focus that students from disadvantaged background continue to face some unique challenges. आइए उसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं. मैं आपको साथ कुछ डाटा शेयर कर रहा हूँ. ये देखिए, डाइवर्स लैंडस्केप की अगर हम बात करें, अभी शुरू में किसी ने कहा कि रीजनल डाइवर्सिटी हो सकती है. आई हैव सम फिगर्स फॉर यू. नाउ इफ वी आर टॉकिंग अबाउट हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन डेंसिटी, if you can please see higher education student institution density, north, northeast, central, east, west, south. So we have from north we have 29%, northeast 3%, central 12%, east 14%, west 16%, and south 26%. And if we actually look it from rural to urban, what we will found that whatever the students we have in our classroom, 67% are from urban background and 33% are from rural background. And if you actually want to look at from a social category perspective, then general category students 43%, OBC 36%, ST 5%, SC 14%, and others are 2%. And if you actually look at for gender wise, then you will find 51.8%, precisely 52% generally male and 48.3% or something like that. They 48.1% are from female and less than 0.1% are from transgender in our higher education institution. Now look at further. What I want to intend to share with you all that student diversity is not simply acknowledging the difference, but recognizing how this difference shaped learning experience and educational outcome. That is my intention. That is my focus at this point of time. And for that purpose, the point is, how does student diversity manifest in your institution? I want you all to please do share me कि आपकी क्लास में क्या you will find some diversity in your class, or you feel that class is normally at the same time same pace, कोई डाइवर्सिटी वाला स्कोप नहीं है क्लास में. व्हाट सिनेरियो इन योर क्लास? आपकी क्लास में आपके यहाँ क्या सिनेरियो है मैम? प्लीज ये बताइए पहले, सो दैट आई कैन एबल टू टेक अप द सेशन अकॉर्डिंगली. आपकी क्लास में, आपके इंस्टीट्यूशंस में क्या इस तरह की डाइवर्सिटी आप देखते हैं, या मोर और लेस बच्चे एक ही बैकग्राउंड से आते हैं, एक ही तरह के बच्चे हैं? यू विल फाइंड इट लिटिल डाइवर्स. मीनल मैम बताएं, कुछ कह रहे थे शायद आप. Yes, sir. We do find students with different diverse backgrounds in terms of learning, in terms of cultural background, in terms of their beliefs. Like some of them are slow learners, some of them are advanced learners. Then some come from a lower background, some come from a affluent background. So we do have diverse students with different beliefs. Okay. You find it out. Okay. You find it relevant. Okay. Anyone else? सर हमारे आर्ट्स में हाँ. करीब करीब 70 से 80% बच्चे ऐसे जो गरीब वर्ग से जिनके यार पास सर, आपकी मोबाइल आवाज भी मुझे साफ सुनाई नहीं दे रही है. प्लीज जरा माइक के पास थोड़ा तेज बोलेंगे प्लीज. हाँ हेलो सर, जी आवाज सर. आ रहा है? हेलो. हाँ अब आ रहा है सर, ठीक आ रहा है. हाँ, मैं आर्ट्स फैकल्टी को पढ़ाता हूँ. ओके. हमारे यहाँ के बच्चे आर्ट्स में करीब करीब 80 से 90% बच्चे गरीब बैकग्राउंड के हैं, सोशली जिनके इकोनॉमिकली पास खुद बैकग्राउंड, का मोबाइल. इकोनॉमिकली चैलेंज. हाँ जी, इकोनॉमिकल. हाँ हाँ हाँ. और उनके पास ये सभी सुविधाएं बड़ी मुश्किल से होती है. कांटेक्ट भी करे तो उनके मम्मा पापा के फोन पे कांटेक्ट करना पड़ता है. टेक्निकली ये बड़ी समस्या है हमारे. But despite all these things, students are coming from higher education. ये भी एक प्लस पॉइंट है ना सर, कि डिस्पाइट द
economic challenges, they are pursuing higher studies. Higher education में है ना वो Yes, sir. यस सर जी ठीक है अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं वाई डाइवर्सिटी मैटर अब आप लोग एग्री कर रहे हैं कि आप लोग अपनी क्लास में डाइवर्सिटी देख रहे हैं आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं नाउ आई जस्ट वांट टू पिन पॉइंट सम ऑफ द थिंग्स व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट डाइवर्सिटी इन हायर एजुकेशन क्रिएट्स रिचर लर्निंग इन्वायरमेंट जब अलग अलग बैकग्राउंड के बच्चे होंगे अलग अलग उनका लर्निंग एक्सपीरियंस होगा just forget about the economic disparity economic things because जब वो काबिल बन के निकलेंगे तो वो चीज़ें पॉप अप कर लेंगे बट जिनके अलग अलग एक्सपीरियंसेस होंगे अलग अलग लर्निंग पैटर्न्स होंगे ना उससे इंटायर लर्निंग एनवायरनमेंट ऑफ द क्लास विल चेंज ठीक है सो बेनिफिट ऑफ स्टूडेंट डाइवर्सिटी जो मैंने शुरू में आपसे बात पूछी थी what is the point of having a diverse background or diverse student in our class the first point and foremost important thing is enhanced learning that is actually helpful for deeper understanding and detailed discussion improve social cohesion जब एक रूरल बैकग्राउंड का बच्चा एक अर्बन बैकग्राउंड के बच्चे के साथ दोस्त मिल करके करते हैं ना तो क्रॉस कल्चरल फ्रेंडशिप भी होती है वो global competence that is also important student will gain a cultural fluency ठीक है increase innovation and social justice ये जो हमारे 5 है ना ये बहुत important है and why diversity matters in NEP 2020 that is for equitable access to the quality education, holistic development of all the student cohorts, addressing the representation gaps in education and fostering the inclusive institutional culture. That is why in NEP diversity is plays a very important role. We have some additional dimension of diversity. जैसे आप सब लोगों ने बहुत सारी बातें बताई हैं. We have some additional dimension of diversity like लर्निंग स्टाइल एंड प्रेफरेंसेस लोगों के प्रेफरेंस बदल जाते हैं कल्चरल एंड रिलीजियस बैकग्राउंड आप लोगों ने मेंशन भी किया अर्बन एंड रूरल एजुकेशन एक्सपीरियंसेस ये मैंने आपके साथ शेयर किया था फर्स्ट जनरेशन कॉलेज स्टूडेंट्स विल हैव डेफिनेटली कंप्लीटली डिफरेंट सिनेरियो एंड डिजिटल लिटरेसी जिसके बारे में भी हम लोगों ने बहुत कम बात की टेक्नोलॉजिकल एक्सेस दैट इज आल्सो डाइवर्सिटी मैं आपके साथ यहाँ बात करना चाहूंगा मैम सर क्या फील करते हैं कि आपके स्टूडेंट्स आपसे टेक्नोलॉजी के मामले में ज्यादा एडवांस्ड हैं नहीं सर आज स्टूडेंट्स आज के ज्यादा एडवांस है उनको ज्यादा चीजें पता है but the only thing is they lack focus and on how to use that technology that is accepted I am asking टेक्नोलॉजिकल अवेयरनेस आज की ज़िंदगी में हम एज ए टीचर्स से ज्यादा है करेक्ट है ज्यादा है तो दैट इज आल्सो डाइवर्सिटी ना सर मैम दैट इज आल्सो डाइवर्सिटी उनका टेक्नोलॉजिकल एक्सपेक्टेशन थी इसके बारे में ये डिजिटल लिटरेसी और टेक्नोलॉजिकल एक्सेस के बारे में कोई बात ही नहीं करता दैट इज आल्सो डिफरेंट and that is going to be a game changer आइए आपसे बात कर रहे हैं इस बारे में first I have a very famous quote here I would like to share with you all and I would like to listen your analogy for this quote diversity is being invited to the party inclusion is being asked to dance because actually अभी हम लोगों ने डाइवर्सिटी के बारे में थोड़ी सी बात की अब हम लोग डाइवर्सिटी से इंक्लूजन की तरफ शिफ्ट करना चाहते हैं दैट्स व्हाई आई डेलिबरेटली टेकन दिस कोट दिस कोट सेज डाइवर्सिटी इज बीइंग इनवाइटेड टू अ पार्टी ठीक है इंक्लूजन इज बीइंग आस्क्ड टू डांस Varna Myers has given this quote and it's a very beautiful quote. Now I would like to request you all to please take a moment, think about this quote and what you actually understand and how you perceive this quote in terms of diversity and inclusion. Please
Do let me know. It's really important. जी बताइए सर. You want to interpret it as in the educational context background or in general background? मैम with special reference to this session, अभी हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, वी आर एक्चुअली डिस्कसिंग अबाउट डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन. ठीक है, वी एक्चुअली नो व्हाट लिटरली इट मींस, but we are just sit together, we are spending our time just to understand it in a deeper and more inclusive way, more important way, how it is going to affect our teaching pedagogy, how it is going to affect our classroom, how it is important for us as a teacher. In this particular context, I have just thought diversity is being invited to a party, inclusion is being asked to dance. आप इस स्टेटमेंट को कैसे देखते हो? Sir, if I talk about my experience when I came to this particular college, like coming from an MBA teaching faculty background and taught always in English, had been given Marathi medium classes. So they wanted me to dance on inclusionism turns out like teaching in Marathi. Whatever subject, it was a task for me to understand the terminologies and speak them in Marathi. And I'm like sorry, but then 16 years have gone by. If like 10 years bhi main bolu ki like I've been teaching in Marathi medium, I still have not got the knack of teaching fluently in Marathi. Like I keep on including English words in my Marathi medium class as well also. But as of my English medium class, I do not even refer a book also. So ये डाइवर्शन और इंक्लूसिविटी में really एक ऐसा डाइवर्जन तो हो गया, डाइवर्सिटी तो हो गई, इंक्लूजन नहीं हुआ. हाँ इंक्लूजन नहीं हुआ ना. मैं अभी तक डांस करना नहीं सीखी हूँ सर. राइट राइट राइट. ये मैम यही इम्पोर्टेंट है एक्चुअली. आज के सेशन का हमारा मेन मोटो यही है कि ये जो दो अलग अलग वर्ड्स है ना, डाइवर्सिटी और इंक्लूजन, हम इसको समझ पाए एग्जैक्टली कि ये है क्या और कैसे हमें इसको पाना है. बिकॉज विदाउट डाइवर्सिटी इंक्लूजन का कोई मतलब नहीं है, एंड विदाउट इंक्लूजन डाइवर्सिटी मीनिंगलेस हो जाएगी. एनीवन एल्स प्लीज? We have 40 more participants. I request you all to please be participative. Sir, my experience is that I teach to Marathi medium as well as Hindi medium. But I was through that many of the who teach in Hindi are not explaining in the class of English medium. They are not aware of Indian Marathi words. For example, cost accounting, financial accounting, management accounting. They do not know the meaning of that words. नहीं सर, ये पॉइंट नहीं है. मैं आपको फिर से अपनी बात कह दूं, मेरा पॉइंट सब्जेक्ट नॉलेज है ही नहीं. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सब्जेक्ट नॉलेज कि उनको बेसिक टर्मिनोलॉजीज आती है या नहीं आती है. मेरा वो पॉइंट नहीं है. आई एम जस्ट आस्किंग कि एज ए टीचर आप जब इसको देखते हो, डाइवर्सिटी और इंक्लूजन को, मैंने ये आपके साथ स्टेटमेंट शेयर किया ना, डाइवर्सिटी इज बीइंग इनवाइटेड टू अ पार्टी, इंक्लूजन इज बीइंग आस्क्ड टू डांस. इसको आप अपने टीचिंग में आप इसको कैसे देख रहे हो इस स्टेटमेंट को? अगर आप इसको एक्सप्लेन करना चाहते हो, इसको कैसे एक्सप्लेन करोगे? First of all, basic of the topic, then its principles, then its characteristics, then its features, and after that, I will take assignments about that. What the student responds to that. Anyone else? Anyone else? तो ये प्रश्न थोड़ा हिंदी में क्लियर करेंगे तो थोड़ा समझने में आसान होगा. मराठी मराठी से थोड़ा इंग्लिश समझने में थोड़ी दिक्कत जाती है. हिंदी में पूछो सर.
हिंदी हिंदी में। हिंदी में पूछो आप। हेलो। अविनाश सर, अविनाश सर, जी जी जी। हाँ हिंदी जी में सर मैं ये कह रहा प्रश्न हूँ, पूछिए। जब हम डाइवर्सिटी की बात करते हैं ना, विविधता की, जी। ठीक है, हमने कहा हाँ ये जो स्टेटमेंट है, आप एक बार स्टेटमेंट आप देख पा रहे हैं? जी, मैं मोबाइल पे अटेंड, बाहर में हूँ मैं थोड़ा, फिर अच्छा, भी आप देख अटेंड नहीं कर पा रहा रहे हूँ। हैं, आप देख नहीं पा रहे हैं, ठीक है, हॉस्पिटल कोई में, बात नहीं, हाँ। कोई बात नहीं। मैं अपने, आप में से कोई और कुछ कहना चाहेगा? नहीं, ठीक है, मैं आपको अपना वर्जन बताता हूँ, आप एक बार देखिएगा, समझिएगा इसको, चीज को। व्हाट आई एक्चुअली इंटरनेट फ्रॉम दिस, जस्ट ओके, लेट मी थिंक आउट। मान लीजिए आप एक पार्टी में गए हैं सर, ये हम सब लोग पार्टी में जाते हैं, ठीक है, वेडिंग पार्टीज होती हैं, नॉर्मल पार्टीज होती हैं, हम लोग पार्टीज में जाते हैं, ठीक है। डाइवर्सिटी की जब हम बात करते हैं, इट्स जस्ट लाइक there is a party and people are from different backgrounds are coming to the party, ठीक है। Different background means people are from different culture, people are from different abilities, people are from different perspective, whatever the way different you can feel, they all are invited in the party. Just imagine a big party at your place, आप जहां भी हैं, आप नागपुर में हैं, आप जहां भी हैं, एक मिनट के लिए मेरे साथ समझिएगा। आप एक बहुत बड़ी पार्टी इमेजिन करिए, जहां पे एक बहुत बड़ी पार्टी हो रही है, जिसमें अलग अलग बैकग्राउंड के, अलग अलग प्रोफेशन के, अलग अलग सोशल क्लास के लोग आए हैं, ठीक है। एक बहुत बड़ी पार्टी है, अलग अलग बैकग्राउंड के, अलग अलग कास्ट के, अलग अलग सोशल बैकग्राउंड के लोग आए हैं उस एक पार्टी में, जिसमें आप भी हैं। उस पार्टी में जहां अलग अलग लोग आए हैं, जो अलग अलग बैकग्राउंड से, अलग अलग सोशल क्लास से, अलग अलग प्रोफेशन से बिलोंग करते हैं, तो उनके अपीयरेंस में फर्क होगा सर? Yes, जी हाँ सर, definitely. बिल्कुल बिल्कुल डेफिनेटली। उनकी वाइब्स जिसे हम बोलते हैं, वाइब्स में फर्क होगा। Yes. जी हाँ सर। So there will be a variety in that particular hall जहाँ पे वो पार्टी हो रही होगी। आपको हर तरह के लोग दिखेंगे और अलग अलग तरीके के लोग दिखेंगे, राइट? अब आप जी सर। एक मिनट के लिए समझिए कि आप उस पार्टी में सबके बीच में होकर के भी खुद को अकेला मान रहे हैं। क्यों? क्योंकि सब लोग, वो जो लोग अलग अलग बैकग्राउंड के हैं, अलग अलग सोशल क्लास के हैं, अलग अलग प्रोफेशन के हैं, वो सारे लोग आपस में बात कर रहे हैं, हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, मजे कर रहे हैं, डांस भी कर रहे हैं, खड़े होकर के अब कोको कोला या अपना कोई ड्रिंक पी रहे हैं, एनी सॉफ्ट ड्रिंक, व्हाटएवर यू प्रेफर, आप पी रहे हैं, and you pretend to show yourself as a busy person. आप मोबाइल स्क्रॉल करेंगे, आप ड्रिंक पिएंगे, आप इधर उधर ऐसे देखेंगे, शायद आप जानबूझ के अपने आप को बिजी करने के लिए, आप या मैं, कोई नहीं, फोन करेगा एक दूसरे को, राइट? ऐसा हो सकता है अगर हम किसी पार्टी में हों, जहां पार्टी में होने के बावजूद हम आपको, अपने आप को अकेला फील करें, कोने में फील करें, तो वो कैसी फीलिंग होगी? अनकंफर्टेबल लगेगा सर। तो अनकंफर्टेबल आपने लगेगी जैसे ना? बताया, मोबाइल अनकंफर्टेबल लगेगी ना? खुद को कहीं तो भी व्यस्त करने का हाँ। प्रयास करेंगे, बिजी करने का प्रयास करेंगे। Despite being invited in the party, despite being invited in a party, if no one is there for you, you feel aloof, you feel abandoned, you feel cornered, right? Left out, हाँ, neglected. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एंड जस्ट इमेजिन अ मूवमेंट जहां किसी ने आपकी तरफ हाथ बढ़ाया, आप उसको नहीं जानते, वो आपको नहीं जानते, एंड वो वेरी पॉजिटिवली शी और ही टोल्ड यू, फॉर मेल पर्सन ही टोल्ड यू, एंड फॉर फीमेल फ्रेंड्स शी टोल्ड यू दैट कम ऑन, लेट्स जॉइन अस फॉर द डांस फ्लोर, और उसकी वाइब्स आपको बहुत पॉजिटिव लगी, बहुत अच्छी लगी,
Even if you hesitate, they pulled you very positively, and they make you feel comfortable in this entire gathering. Then how you feel now? Happy. Happy ना? बेटर बेटर फील कंफर्टेबल लगेगा. बिलोंगिंगनेस खुलेगा. है ना सर? अब आप ये आपने जो सिनेरियो देखा है ना, अब आप इसी सिनेरियो को अपनी क्लासरूम में जी देखो. जी अब आप इसी सिनेरियो को अपनी क्लासरूम में देखो. बिल्कुल बिल्कुल आया ध्यान. जी 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 ये सिनेरियो का इनवाइट किया कि आओ हमारा कोर्स ज्वाइन करो. They are invited in the party. They have a diverse background. But if they are not inclusive, if they are not included in to dance, if they are not included in the celebration of learning, they feel left out. They feel aloof. They feel abandoned. They feel cornered. और जहां आपने एज ए टीचर उनकी तरफ हाथ बढ़ाया, they will dance, they will enjoy, they will feel comfortable, they will feel they are the part of the party, and they will then enjoy, and they will then embrace this party. तब आपकी लर्निंग में फ्लेवर ऐड हो जाएगा. टीचिंग करते समय सर ऐसे ही बच्चे मिलते हैं हमारे क्लास में, तो प्रमुखता से मिलते हैं. अलग अलग वर्ग से, अलग अलग स्टेट से भी आए हुए बच्चे हैं. हेलो जी सर. हेलो, हाँ सर, मैं आपको सुन आवाज पा आ रहा रहा है हूँ. ना? मैं सुन पा रहा हूँ सर. एक मेरा अनुभव बताना चाहूंगा इसी आधार पर. एक बच्चा गढ़चिरौली से उधर से आया था, बहुत अनकंफर्टेबल, बहुत ही बोलता नहीं था, लेकिन उसमें क्षमता थी, ये मेरे ध्यान में आया. उसको मैंने पुश करके भी लेके गया. मेरी तरफ एनएसएस था, उसमें भी उसको बोलने को लगाया, तो धीरे धीरे खुलने लगा. आज सर वो प्राध्यापक थे. उसने नेट क्वालिफाई की और एज अ परमानेंट नहीं है क्योंकि अभी गवर्नमेंट की परमानेंट भर्तियां नहीं है, फिर भी टीचिंग कर रहा है प्राध्यापक करके. तो ऐसे बहुत से अनुभव है कि बच्चों को ढूंढ कर पुश करना पड़ता है, करते हैं हम लोग. जी, जिसकी अविनाश क्षमता सर, देखकर उसको यही बात है. एज ए टीचर मैं यही पॉइंट आउट करना चाह रहा था कि डाइवर्सिटी इज इन द क्लास.